1 o'clock in the night, you're having your coffee, you feel this is a very calm and relaxed watch. You see one faint white light on starboard bow, suddenly this calm and relaxing watch can become into a chaotic watch. What we can do, why Rule 7 asks us to change our mindset, we'll know in this video. So hello and welcome, I'm Captain Umang, you're watching me on Nav Insider. आज का हमारा टॉपिक है रूल 7 विच इज रिस्क ऑफ कोलिजन. अगेन आई हैव पिक्ड द रूल फ्रॉम पार्ट बी, स्टीयरिंग एंड सेलिंग रूल सेक्शन 1, कंडक्ट ऑफ वेसल्स इन एनी कंडीशंस ऑफ विजिबिलिटी. क्यों रूल 7 हमें माइंडसेट बदलने के लिए कहता है, रूल 7 हमें क्या सिखाता है, काफ़ी आसान भाषा में आप तक पहुंचाऊंगा. वीडियो एंड तक देखिए. लेट्स नॉट वेस्ट एनी टाइम, लेट्स स्ट्रेट अवे स्टार्ट विद द रूल. नाउ रूल 7 पैरा A says every vessel shall use all available means appropriate to the prevailing circumstances and conditions to determine if risk of collision exists. If there is any doubt, such risk shall be deemed to exist. तो ये तो हो गया रूल. अब समझते हैं रूल को. इस रूल में हम तीन चीज़ें समझेंगे. सबसे पहले ऑल अवेलेबल मीन्स, सेकेंड में प्रिवेलिंग सर्कमस्टांसेस एंड कंडीशंस, एंड थर्ड हम समझेंगे डीम टू एग्जिस्ट. सबसे पहले बात करते हैं ऑल अवेलेबल मीन्स. ऑल अवेलेबल मीन्स इस रूल के पहले आता है रूल नंबर 5 में, बट रूल नंबर 5 में जो आता है दैट इज फॉर डिफरेंट पर्पस, दिस इज फॉर डिफरेंट पर्पस. रूल नंबर 5 का ऑल अवेलेबल मीन्स इज फॉर कीपिंग लुकआउट. हियर ऑल अवेलेबल मीन्स टू फाइंड आउट इफ देयर इज अ रिस्क ऑफ कोलिजन. व्हाट आर द मीन्स? रिमेंबर यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं. दिस लिस्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव, इसमें आप और भी चीजें ऐड कर सकते हो. दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग एंड एग्जाम्पल. सबसे पहला आता है आपका साइट. इफ यू कैन सी द वेसल दैट इज द बेस्ट थिंग, बट वन थिंग विच आई वॉन्ट टू एनकरेज amongst junior officers, among cadets is please take compass bearings. This is the skill which is getting lost day by day. People on board, they don't know how to take bearing and this is very alarming as well as dangerous at same time. So जब भी आप किसी भी vessel को sight करो, first you try to take his compass bearing if the traffic is allowing you. If you are in a very heavy traffic area, you can rely on your equipments, but that too you have additional help. You can ask them to verify the compass bearing. Second is hearing. If your vessel is navigating in restricted visibility, this is one of the most important means that you have. If the intensity of sound is increasing, you can understand that the vessel is approaching. If the intensity of sound is decreasing, आपको समझ आ जाएगा कि vessel जो है धीरे धीरे दूर जा रहा है. But how can we know that? Provided we keep a very sharp hearing lookout. फिर है रेडार. रेडार विल इंक्लूड लॉन्ग एंड शॉर्ट रेंज, ये हम आगे बात करेंगे. दिस इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट पॉइंट. उसके बाद है आपका अवेलेबल मीन्स में एक्डिस. नाउ एक्डिस, हाउ इज इट एन अवेलेबल मीन्स फॉर लुकआउट? बिकॉज एक्डिस इज नॉट ओनली गोइंग टू शो यू टारगेट्स बट ऑल्सो गोइंग टू शो यू चार्ट. तो व्हेन यू नो द ट्रैफिक विथ योर चार्ट, it is better for you to take action. Then comes VHF. Now many of you say अरे VHF तो collision avoidance के लिए use नहीं करना चाहिए, risk of collision के लिए पता नहीं होना चाहिए, या it is not one of the available means. I'll give a small example. Let's say you're transiting English Channel or Singapore Strait, आप TSS में हो. Suddenly there is an announcement that so and so vessel at so and so position is following wrong lane of TSS. What are you doing? You can make out that this may be risk of collision if I continue on this course because वो vessel सामने से गलत side से आ रहा है. So this is how VHF can be useful. VHF is extremely useful provided you have positively identified the target. वरना VHF पे कौन बात करता है हमें नहीं पता. So there is a circular by IMO which we'll be talking about sometime later. But VHF is also a aid. It is not the only thing that you should rely on. It is also an aid. VHF is extremely useful, especially if you are in TSS, VTS area, or as required when you have positively identified the target. Next is AIS. Now this is very important. There is an IMO resolution, IMO Assembly 1106 of 29 session. This talks about operational use of AIS. AIS, understand it like an additional help. Don't rely on AIS totally. AIS can give you quick results. फटाफट बता देगा that okay, this vessel has changed the course, which is difficult to find out if you are observing by radar because radar relies on actual reflection from the vessel and it will take some time. But AIS is immediate, आपको बहुत हेल्प करेगा, तुरंत बता देगा. फिर रेडार के कुछ लिमिटेशन है, जैसे टारगेट स्वैप हो जाता है. एक टारगेट अगर नजदीक से टारगेट पास हो रहे हैं तो इसका टारगेट इधर चला जाएगा, इसका इधर आ जाएगा. दिस इज नॉट विथ AIS, बट AIS has its own limitation. सबसे बड़ा लिमिटेशन है not every vessel is fitted with AIS. Second है people can switch AIS off. Third is that AIS may be malfunctioning.
So we don't know what may be the case, but AIS पे पूरा rely नहीं करना. And last but not the least, your automatic radar plotting it, one of the most important thing in today's world. अब बात करते हैं prevailing circumstances and condition. ये जो वर्ड है इससे पहले रूल 5 में यूज हुआ है. वहां पे पर्पस अलग था, यहाँ पे पर्पस अलग है, लेकिन मीनिंग दोनों जगह सेम है. वहां पे जो मीनिंग था वो वही मीनिंग यहाँ पे. ये क्या कहता है दैट आपके जो अवेलेबल मीन्स है दैट इज टू बी अप्रोप्रिएट टू द प्रीवेलिंग सर्कमस्टांसेस एंड कंडीशंस. अभी इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है, सपोज अगर रेस्ट्रिक्टेड विजिबिलिटी है एंड यू रिलाई ऑन साइट कि मेरे को वेसल दिखेगा तो ही मैं एक्शन लूंगा, या मेरे को वेसल दिखेगा तो ही मैं डिटरमाइन करूंगा रिस्क ऑफ कोलिजन है या नहीं. दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क बिकॉज यू कैन नॉट सी एनीथिंग. सिमिलरली सपोज एक माउंटेन है जिसके अराउंड आपको घूम के जाना है. देयर आर चांसेस कि माउंटेन के पीछे साइड भी कोई वेसल है जो बाहर निकल रहा है. देयर इज अ नेविगेबल वाटर ऑल अराउंड इट, यू कैन नॉट सी. अगर आप रेडार पे रिलाई करोगे, रेडार मे शो यू द करेक्ट पिक्चर, मे नॉट शो यू द करेक्ट पिक्चर. लेकिन उस टाइम पे एआईएस का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा हो जाता है बिकॉज एआईएस इज गोइंग टू शो यू पिक्चर इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर योर रेडार इज रिसीविंग सिग्नल फ्रॉम दैट वेसल और नॉट. व्हाट आई मीन टू से इज कि डिपेंडिंग ऑन कि आपका लोकेशन क्या है, आपका वेदर कैसा है, आपकी स्पीड कैसी है, कंडीशन कैसा है, ट्रैफिक कैसा है, ये सारे मीन्स पे अलग अलग तरीके से आपको रिलाई करना है. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आपके शिप के इक्विपमेंट्स कैसे है. फॉर एग्जांपल वन ऑफ माय शिप द एआईएस यूज्ड टू लूज द सिग्नल सडनली देखोगे तो एक्डिस और रेडार से टारगेट्स गायब हो जाते थे. एंड दिस वाज वेरी प्रॉब्लमेटिक बिकॉज इफ यू आर इन हेवी ट्रैफिक एरिया इट इज वेरी डिफिकल्ट इफ सडनली ऑल योर एआईएस टारगेट गोज ऑफ. एंड व्हाट आई मीन टू से कि इस केस में आपको डिसाइड करना है. सो आपके इक्विपमेंट कैसे है, क्या आपके इक्विपमेंट कोई मैल फंक्शन कर रहे हैं और योर इक्विपमेंट्स आर नॉट शोइंग करेक्ट रीडिंग और दे हैव सम इनहेरेंट प्रॉब्लम, या आपका विजिबिलिटी कैसा है, वेदर कैसा है, आपका स्पीड कैसा है, लोकेशन क्या है. सो ऑल दिस हैज टू बी डिटरमाइंड, ऑल दिस हैज टू बी टेकन इनटू कंसीडरेशन बिफोर डिटरमाइनिंग रिस्क ऑफ कोलिजन. फॉर एग्जांपल अगर रिस्ट्रिक्टेड विजिबिलिटी है, यू नीड टू डिसाइड दैट आई विल रिलाई 70% ऑन रेडार, 30% ऑन ईयरिंग और 60% ऑन रेडार, 20% ऑन एआईएस, 20% ऑन ईयरिंग. तो ये आपको डिसाइड करना है बेस्ड ऑन योर शिप, योर लोकेशन, योर वेदर एंड इन योर प्रोफेशनल जजमेंट. एंड दिस इज द मीनिंग ऑफ प्रिवेलिंग सर्कमस्टांसेस एंड कंडीशंस. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड मीनिंग ऑफ डीम टू एग्जिस्ट. नाउ डीम टू एग्जिस्ट टोटली रिमूव्स द डाउट बिजनेस, नो डाउट बिजनेस. अगर आपको डाउट है कि रिस्क ऑफ कोलिजन है नहीं है, आर वी गोइंग टू पास क्लोज और आर वी गोइंग टू हैव जीरो सीपीए, इफ यू हैव एनी डाउट यू हैव टू अज्यूम दैट देयर इज रिस्क ऑफ कोलिजन एंड टेक एक्शन अकॉर्डिंगली. इसका रीजन ये है, सपोज यू आर टेकिंग विजुअल बेयरिंग, समटाइम्स यू फील दैट बेयरिंग इज सेम, समटाइम्स यू फील बेयरिंग इज डिफरेंट, बट देयर मे बी वेसल में बी रोलिंग और पिचिंग जिसकी वजह से आपका बेयरिंग में एरर आ रहा है. व्हाट इट मीन्स टू से इज कि जब भी आपको डाउट हो ना, यू अज्यूम द वर्स्ट केस सिनेरियो, एक्ट अकॉर्डिंगली. दैट इज द मीनिंग ऑफ डीम टू एग्जिस्ट. नाउ रूल 7 पैरा B says proper use shall be made of radar equipment if fitted and operational, including long range scanning to obtain early warning of risk of collision and radar plotting or equivalent systematic observation of the detected objects. तो ये तो हो गया रूल. अब समझते हैं इस रूल को. इस रूल में समझने वाली तीन चीजें हैं, तीन इंपॉर्टेंट चीजें. सबसे पहले है प्रॉपर यूज ऑफ रेडार इक्विपमेंट. अगर फिट हुआ है एंड ऑपरेशनल है तो, यानी कि अगर आपके शिप पे रेडार फिटेड है एंड अगर वो चल रहा है तो आपको उसका प्रॉपर यूज करना है. नाउ रेडार फिट तो ऑलमोस्ट सबकी शिप में होता है, ऑपरेशनल नॉन ऑपरेशनल इज अ सेपरेट थिंग. नाउ दिस पॉइंट प्रॉपर यूज इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट इट मीन्स टू से इज दैट फर्स्ट योर रेडार हैज टू बी ट्यून्ड प्रॉपर्ली. नाउ मोस्ट ऑफ आवर रेडार टुडे, मॉडर्न डे रेडार आर ऑटो ट्यून्ड. सेकंड, यू हैव टू ऑप्टिमाइज इट सेटिंग, स्पेशली क्लटर सेटिंग, योर एंटी रेन क्लटर, एंटी सी क्लटर, योर गेन सेटिंग्स. तो आपका जो रेडार का ऑप्टिमम सेटिंग है वो आपको ढूंढना है. नाउ द सैड पार्ट इज व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड इज लॉट ऑफ people when they come on the watch they don't optimize the radar, they don't tune the radar properly. Tuning, okay, it's auto tune, getting auto tune, no problem, but are they adjusting clutter according to the present weather? The adjustment may have been made by the previous officer but the weather may have changed in this 4 hours. So are we looking at our equipments, are we using them properly? Having a radar is a separate thing but having using it optimally is a totally another separate thing. And this is where the lapses are occurring and this is where जो starting में मैंने आपको statement बताया था that one faint light अगर आपको radar पे नहीं दिख रहा है which means you're not making proper use of the radar. Either that object is very small and totally not detectable by radar is a separate story, but most of the times what you will observe that proper use is not made of the radar equipment. Now when you talk about proper use, when you have properly tuned your radar, when you have optimized your radar setting, the first this rule 7 says is long range scanning. Now see, radar equipment IMO is emphasizing a lot on this radar. इसका reason ये है because radar में जो है वो actual wave reflect होके आती है. So when radar says there is a target, there are very less chances that it may be a false target. It can be a false target, I'm not saying no, but
रेडार आपका एक्चुअल डिटेक्ट कर रहा है। दैट इज व्हाई आईएमओ इतना सारा प्रेशर डाल रहा है रेडार पे। रूल 7 में स्पेसिफिकली एक इक्विपमेंट मेंशन्ड है, यू कैन इमेजिन। सो रेडार जो है, रेडार का आईएमओ क्या बोल रहा है, लॉन्ग रेंज स्कैनिंग करो, विच मीन्स इंक्रीज योर रेंज इन बिटवीन, चेक if the vessel is coming or not, check if you are a vessel not to impede or other vessel is not to impede, try to find out if you both of you don't alter your course, who is going to become giveaway vessel, who is going to become stand on vessel, try to find out if risk of collision is existing, not existing. That is long range scanning. The best thing what one navigator can do is keep one radar on short range, one radar on longer range. Which one to use, I will leave it to you. When we talk about radar, we will discuss about characteristics and limitations of radar equipment, be it X band or S band. But अभी के लिए जो मेरा पॉइंट है कि लॉन्ग रेंज स्कैनिंग आपको करना है। एक रेडार चाहे तो आप लंबी रेंज पे रखो, एक रेडार छोटे रेंज पे रखो, एंड कीप स्विचिंग बिटवीन डिफरेंट रेडार मोड्स। एंड देन इट टॉक्स अबाउट रेडार प्लॉटिंग और इक्विवेलेंट सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन ऑफ डिटेक्टेड ऑब्जेक्ट। टुडे फॉर रेडार प्लॉटिंग वी हैव ऑटोमेटिक एड्स, आरपा। पहले के जमाने में मैनुअल प्लॉटिंग था, लेकिन यू हैव टू प्लॉट द टारगेट्स। नाउ अनदर थिंग व्हिच आई हैव ऑब्जर्व्ड लैब्स व्हाइल वॉच कीपिंग इज पीपल डोंट एक्वायर रेडार टारगेट्स। सी रेडार इज नॉट चार्जिंग यू एनी मनी, वो आपसे पैसा ले नहीं रहा, तो आप लोग एक्वायर क्यों नहीं कर रहे हो? पीपल से अरे क्लटर हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। डोंट एक्वायर ऑल द टारगेट्स, बट द टारगेट्स व्हिच आर इंपॉर्टेंट एक्वायर, एंड डोंट एक्वायर देम वंस दे जस्ट क्रॉस यू, लेट देम गो। फाइनली पास्ट एंड क्लियर है, जब जैसा हमने रूल 8 पैरा डी में पढ़ा था, जब आराम से टारगेट पास हो जाए, दूर चला जाए, तब आप उसको डीसिलेक्ट कर सकते हो। बट प्लीज एक्वायर टारगेट। रेडार इज नॉट गोइंग टू गिव यू अलार्म इफ यू डोंट एक्वायर योर टारगेट। एआईएस में गिव, बट रेडार अलार्म नहीं देगा। सो इंपॉर्टेंट थिंग इज आपको रेडार में प्लॉटिंग करना है। आजकल तो हमारे पास आरपा है, सो नो मोर मैनुअल प्लॉटिंग, बट ऑटोमेटिक प्लॉटिंग भी तभी काम करेगा जब आप टारगेट को एक्वायर करोगे, रेडार को बताओगे दैट यू नीड टू प्लॉट दिस टारगेट बिकॉज आई फील दिस टारगेट इज इंपॉर्टेंट। नाउ रूल 7 पैरा सी सेज assumptions shall not be made on basis of scanty information, especially scanty radar information. तो ये तो हो गया रूल। लेट्स ब्रेक दिस रूल डाउन। अब ये बोल रहा है assumptions shall not be made on basis of scanty information, especially scanty radar information. Now you see IMO is trying to change our mindset. Remember rule 7 is more than just a rule, it is a philosophy of your vigilance. Rule 7 पैरा ए में क्या कहा था, that अगर डाउट है तो आपको deem to exist यानी रिस्क ऑफ कोलिजन है ऐसा मान के चलो एंड एक्शन लो। यहाँ पे ये बोल रहा है कि आपने जब किसी भी टारगेट को देखा है, एक्वायर किया है, वॉट एवर इट मे बी, डोंट अज्यूम, स्पेशली ऑन स्कैंटी इन्फॉर्मेशन और स्कैंटी रेडार इन्फॉर्मेशन। अभी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है दैट सपोज इफ यू टेक अ कंपास बेयरिंग एंड उसके 6 मिनट या 7 मिनट बाद आप दोबारा कंपास बेयरिंग लेते हो एक वेसल जो आपकी साइट में है, नाउ यू फील अरे कंपास बेयरिंग चेंज हो रहा है, रिस्क ऑफ कोलिजन नहीं है। बट देयर में बी पॉसिबिलिटी दैट पहले आपने उसके बाव का बेयरिंग लिया था, अब आप उसके स्टर्न का बेयरिंग ले रहे हो, दैट इज व्हाई इट मे बी चेंजिंग। और सेकंड टाइम जब आपने बेयरिंग ली तो वेसल वाज स्लाइटली रोलिंग and because of which there was an error in the bearing. So any risk of collision that you determine has to be based on successive observation. ऐसा नहीं है कि एक बार ऑब्जर्व किया, दूसरी बार ऑब्जर्व किया, रिस्क ऑफ कोलिजन नहीं है। डोंट अज्यूम। यू स्पेशली ऑन स्कैंटी इन्फॉर्मेशन और स्कैंटी रेडार इन्फॉर्मेशन, जब आप रेडार पे किसी भी टारगेट को एक्वायर करते हो, इट टेक्स सम टाइम फॉर रेडार, जनरली इट इज 3 to 5 minutes फॉर रेडार टू कम अप विद द डेटा। इससे पहले ही वो करेक्ट डेटा दे देता है, बट जनरल टाइम इज 3 to 5 minutes and this is called as window period. This is called window period of radar or rather window period of ARPA. इसमें ARPA जो है वो कैलकुलेट कर रहा है। सो अगर इनिशियली जैसे आपने एक्वायर किया, टारगेट डेटा ऑन किया, यू सी CPA 0.9, डोंट अज्यूम दैट 0.9 केबल्स का CPA है। लेट द विंडो पीरियड कंप्लीट, लेट द टारगेट सेटल डाउन। इसके बीच में अगर टारगेट ऑल्टर करता है या आप ऑल्टर करते हो, दिस डेटा इज अगेन गोइंग टू चेंज। व्हाट इट मीन्स टू से इज दैट स्कैंटी रेडार इन्फॉर्मेशन या स्कैंटी इन्फॉर्मेशन पे फालतू के अजम्पशंस नहीं करने के। रूल 7 पैरा D subpara 1 says in determining if risk of collision exists, the following factors shall be among those taken into account. First it says that when the compass bearing of an approaching vessel does not appreciably change, and second subpara it says that such risk may sometime even exist if the appreciable bearing change is evident, especially when approaching a very large vessel or a tow or when approaching a vessel at a very close range. Now ये तो हो गया रूल। अब इसमें देखिए पहले मैं बताता है that how to determine if risk of collision exists. So 3 things that compass bearing, approaching vessel and does not appreciably change, मतलब ज्यादा चेंज नहीं हो रहा है किसी भी अप्रोचिंग वेसल का। Now what is approaching vessel? जिसका रेंज जो है धीरे धीरे कम हो रहा है, उसका कंपास बेयरिंग जो है ज्यादा चेंज नहीं हो रहा है, तो आपको ऐसा मान के चलना है कि रिस्क ऑफ कोलिजन एग्जिस्ट करता है। लेकिन सेकंड पॉइंट में इट गिव्स अस अ वार्निंग दैट सच रिस्क में समटाइम इवन एग्जिस्ट। अगर बेयरिंग चेंज है, स्पेशली लार्ज वेसल, अगेन द सेम थिंग, आप इतने टाइम से उसके बाव का बेयरिंग ले रहे हो, सडनली यू टेक द बेयरिंग
bearing of a stern and you feel अरे ये तो bearing change हो गया, risk of collision नहीं है, but all you may know that you are running into danger. Second, tow. आप कई बार towing vessel का bearing ले रहे हो but आपका risk of collision tow के साथ आ जाए. Towing vessel के साथ आपका bearing change evident है, okay, no risk of collision exists with the towing vessel. But what about the tow which is behind? And that is why it says when you are approaching tow, आपको दोनों का देखना है, towing vessel as well as the tow का. तो point is कि bearing change चाहे हो तब भी risk of collision हो सकता है. And third, it says that अगर आप बहुत close range से किसी vessel को approach कर रहे हो तो bearing तो change होगा but risk of collision तब भी exist करेगा. What IMO is trying to tell us is it is trying or it is urging us to change our mindset. Don't be under false sense of security. आपको हमेशा worst case scenario मान के चलना है. Be proactive and जैसे हमने rule 8 में पढ़ा था, take early action ताकि sufficient sea room रहे आपके लिए भी और other vessel के लिए भी. अगर possible है तो you should take early action and this is what rule 7 is trying to teach us. It is again I will repeat, it is not just a rule, it is a philosophy of vigilance. So ये था rule 7. I hope आपको rule 7 बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, do like the video, share it with your friends, subscribe to the NAV Insider channel. अगर आपको कोई डाउट है या सजेशन है या किसी और टॉपिक पे आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं, you can comment down below. We'll definitely take your suggestion. This is Captain Umang. Thank you for watching me on NAV Insider. Till next time, stay safe, sail smart.